So now we are going to discuss that how SR Ranganathan has categorized or classified the reference services in how many types. SR Ranganathan has divided the reference services. When we discuss about it, we find that SR Ranganathan has divided reference service in two types. The one is known as ready reference service and the other is known as long range reference service. The ready reference service is the service which is uh, considered as the service which is completed within shortest possible time, okay, within a moment if possible. A user comes to reference section or reference librarian or to a reference desk and asks his or her query, and his or her query is answered within shortest possible time. And for answering his or her query, the librarian generally uses the reference book, okay, to answer such kind of queries which can be answered in shortest possible time, can be are answered by using the reference book. The type of material which is used is reference book, okay. When we come to long range reference service, the long range reference service is based on consulting every possible source of information to arrive at the required information, okay. In short range reference service or in ready reference service, only reference books are consulted. But when it comes to long range reference service, in long range reference service, every possible information source is consulted to answer the query, which can be helpful in answering the query which is being asked by the library user. So, okay, as such, it is not possible to render this type of service immediately. As its name is showing or its name is telling, it is a long range reference service and it is not possible to complete this service immediately. Okay, the time needed may range from half an hour to weeks. Okay, in ready reference service, only the answer of a query is given in a moment, okay? And when it comes to the long range service, the time needed for long range service can be an hour or weeks or maybe a month, or it can also increase, the time can also be increased. Okay, the search in the long range reference service starts at the reference book and then goes to the ordinary books, pamphlets, reports, articles, in periodicals, etc. Okay, in as we read in ready reference service, only reference books are consulted to answer the queries, and when we come to the long range reference services, the answer of query or answering the queries starts from consulting the reference books and then it goes to the ordinary books, pamphlets, reports, articles in the periodicals, etc. As we discussed earlier, that to answer the queries in long range reference services, every possible information source and every available information source is consulted to answer the query. Okay, and when a long range reference service is provided and query is answered by using the long range reference service, so today's long range reference service becomes short range reference service or ready reference service for tomorrow. क्यों? आज के जो हम लॉन्ग रेंज सर्विस के लिए हमें ज्यादा टाइम इसलिए चाहिए होता है कि इसमें क्वेरी कॉम्प्लेक्स होती है, उसके लिए ज्यादा मटेरियल को कंसल्ट करना पड़ता है आंसर करने के लिए, और ज्यादा टाइम हमें चाहिए होता है। लेकिन सेम क्यूरी, अगर जो क्यूरी आज जिसको आंसर करने के लिए ज्यादा सोर्सेस को कंसल्ट करना पड़े और ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है इसमें, सेम क्यूरी अगर हमसे कल कोई आके यूजर करता है तो हम क्योंकि उस पे काम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम इमीडिएटली हमारे यूजर को आंसर करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो आज की लॉन्ग रेंज सर्विस है वो कल हमारे लिए रेडी रेफरेंस सर्विस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, if the information is not available in the library, okay, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास विद इन द लाइब्रेरी मौजूद नहीं है तो हम आउट ऑफ द लाइब्रेरी भी जाएंगे।
हम विद इन द सिटी, सेम सिटी हम लाइब्रेरी को कंसल्ट कर सकते हैं, विद इन द सेम प्रोविंस हम कंसल्ट कर सकते हैं, विद इन द सेम स्टेट एंड देन विद इन द सेम कंट्री। और हम मे बी समटाइम्स इंटरनेशनली भी किसी क्वेरी को आंसर करने के लिए, अपने यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए इंटरनेशनली भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी लाइब्रेरी से मटेरियल हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लॉन्ग रेंज सर्विस में हम सिर्फ विद इन लाइब्रेरी नहीं रहते, बल्कि आउट ऑफ द लाइब्रेरी जाके भी हम अपने यूजर के लिए उसकी क्वेरी को आंसर करने के लिए वर्कआउट करते हैं। द लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस प्रोवाइडेड टुडे, एज आई ऑलरेडी आई टोल्ड दैट the long range service provided today can become the ready reference service tomorrow. Okay. Now, bibliographical service, referral service, translation service, etc. are considered long range reference services. जब हम लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में आते हैं तो इसमें फिर बिब्लियोग्राफिकल सर्विस भी इंक्लूड हो जाती है, रेफरल सर्विस भी इंक्लूड हो जाती है, ट्रांसलेशन सर्विस भी इंक्लूड हो जाती है। ये तमाम सर्विसेज जो लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही होती हैं लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस टाइप में, ये तमाम सर्विसेज इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा ऐसा रंगनाथन ने किस तरह से कैटेगराइज किया, किस तरह से टाइप्स में डिवाइड किया रेफरेंस सर्विस को। अब हम आ जाते हैं कि जनरल कुछ कैटेगरीज रेफरेंस सर्विस की क्या हैं। The focal point of reference service is answering questions posed by the library's users based on the activity that are performed to meet the user demands. Okay, the reference and information services can be categorized as follows. हमारे पास हमारा मेन मकसद क्या होता है रेफरेंस सर्विस का, कि हमारे हमें हमसे जो यूजर ने क्वेरी की होती है, जो क्वेश्चन किया होता है, उसको हमें आंसर करना होता है और उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं on the demand of users and to meet the demands of the users. Okay, उसमें हम जनरली इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है इंस्ट्रक्शनल। ठीक है, जनरल कैटेगरी हो सकती है रेफरेंस सर्विस की, कि उसमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं लाइब्रेरी यूजर्स को इन यूजिंग द लाइब्रेरी रिसोर्सेज which can include bibliographies, encyclopedias, OPAC, etc. इसके लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं यूजर्स को कि वो किस तरह इनको यूज करें। इसको हम टीचिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, देन इट कम्स रेफरल सर्विस। हम यूजर को इट डायरेक्ट इंक्वायरीज टू अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच मे बी इन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल एक्सपर्ट। ठीक है, इसको हम ना सिर्फ हम विद इन द सेक्शन हम अपने यूजर को फैसिलिटेट करते हैं, बल्कि हम अपने यूजर को रेफर करते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी, किसी दूसरे इंडिविजुअल एक्सपर्ट की तरफ भी, किसी दूसरे लाइब्रेरी की तरफ, जहाँ से उसकी क्वेरी को, जहाँ से उसका जो डिमांड है वो पूरी हो सकती है। तो रेफरल सर्विस भी एक इसकी कैटेगरी है रेफरेंस सर्विस की ही। फिर हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन स्काउटिंग। इंफॉर्मेशन स्काउटिंग सर्विस कंसिस्ट ऑफ कीपिंग ए लिस्ट ऑफ हु हैज व्हाट इंफॉर्मेशन एंड वेयर। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्काउटिंग में क्या होता है कि लाइब्रेरियन या जो रेफरेंस स्टाफ है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि किस काइंड की इंफॉर्मेशन कौन से इदारे के पास मौजूद है या कौन सी जगह पे मौजूद है, ताकि जब कोई हमारे पास ऑलरेडी ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्ट की जाती है, और फिर जब यूजर हमारे पास क्वेरी के साथ आता है तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे उसकी क्वेरी को आंसर करने की कोशिश की जाती है। फिर आ जाता है citation verification service. In citation verification service is intended to verify the citation references and authentication of bibliographical details of books, articles, reports, theses, and other published materials obtained from the sources other than the authoritative indexing and abstracting. ठीक है, फिर citation verification एक टाइप है रेफरेंस सर्विस की, जिसमें ये बुक्स और रेफरेंसेस जो होते हैं उन की जो या बुक्स की जो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स हैं उसको वेरीफाई किया जाता है। उन बुक्स, उन आर्टिकल्स, उन रिपोर्ट्स और उन थीसिस की जो कि किसी अथेंटिक सोर्स यानी किसी अथेंटिक इंडेक्सिंग और एक्सट्रैक्टिंग सर्विस के जरिए से ऑफर नहीं किए जाते, बल्कि उससे हट के कहीं से आए होते हैं, तो उनकी साइटेशन को वेरीफाई किया जाता है। तो ये भी रेफरेंस सर्विस में ही आता है, क्योंकि जब रेफरेंस सेक्शन में रेफरेंस स्टाफ ये चीजें वेरीफाई करता है और उस अथेंटिसिटी को कंफर्म करने के बाद यूजर को उस मटेरियल तक एक्सेस देता है, तो मींस कि अथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी अथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी सर्विस है, रेफरेंस सर्विस है। ओके, फिर आ जाते हैं लिटरेचर सर्च, बिब्लियोग्राफिकल सर्च। लिटरेचर सर्च में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक सर्च फॉर लिटरेचर
in any form on a particular topic. अच्छा, ये जो लिटरेचर सर्च है सर्विस की टाइप है रेफरेंस सर्विस की, ये खास तौर पे रिसर्चर्स को हेल्प आउट करती है। ठीक है, इस तरह से कि रिसर्चर जब रिसर्च कर रहा होता है किसी टॉपिक पे, तो हो सकता है कि ऑलरेडी उस टॉपिक पे रिसर्च हो चुकी हो। ठीक है, और रिसर्चर के नज़र में या उसके इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में ये बात ना आ सके कि ऑलरेडी इस पे काम हो चुका है, तो उससे क्या होता है कि डुप्लीकेट हो जाता है काम। और डुप्लीकेट होने के बाद वो जो सारा रिसर्च में उसकी रिसर्चर की एनर्जी होती है, उसका जो कॉस्ट आई होती है, उसका टाइम होता है, वो तमाम वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लाइब्रेरी की रेफरेंस सर्विस की एक टाइप ये भी है कि लिटरेचर सर्च और बिब्लियोग्राफिकल सर्विस भी कंडक्ट किए जाते हैं, जिनकी बेस पे जो रिसर्चर लाइब्रेरी में आता है उसको मालूम हो जाता है कि इन टॉपिक्स पे, ठीक है, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ऑलरेडी काम हो चुका है और इनके इन एरियाज पे काम हो चुका है, और ये पर्टिकुलर एरियाज हैं जिनमें काम अभी होना बाकी है। तो इससे क्या होता है कि रिसर्चर फिर उन एरियाज में काम करता है जहाँ पे काम की नीड होती है, तो इस तरह से डुप्लीकेशन नहीं होती, और जब डुप्लीकेशन नहीं होती तो हमारे रिसर्चर की जो कॉस्ट है, उसका जो टाइम है और उसकी एनर्जी, ये तमाम चीज़ें वेस्ट नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए लिटरेचर सर्च या बिब्लियोग्राफिकल सर्विस कंडक्ट किए जाते हैं। Then it comes to preparation of bibliographies, indexes and abstracts on certain minute subjects. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे अलग से, ठीक है, एक तो ओवरऑल बिब्लियोग्राफीज बनाई जाती हैं लाइब्रेरीज में, इंडेक्सेस प्रिपेयर किए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं ओवरऑल। ठीक है, और फिर यूजर की डिमांड्स को देखते हुए कुछ छोटे सब्जेक्ट्स पे, रिसर्च एरियाज पे, अगर कोई रिसर्चर किसी डिमांड के साथ आता है तो उसको उस छोटे एरिया के हिसाब से भी बिब्लियोग्राफीज प्रिपेयर की जाती हैं, इंडेक्सेस प्रिपेयर किए जाते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ये लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जो उसको उसके रिसर्च में हेल्प आउट करती है। तो ये भी रेफरेंस सर्विस की एक टाइप है। फिर आ जाती है ट्रांसलेशन सर्विस। ट्रांसलेशन सर्विस में जो है, ट्रांसलेशन सर्विस में प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन जो कंटेंट्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज में जिसमें वो मटेरियल पब्लिश होता है, उस लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेट किया जाता है, लोकल अंडरस्टूड लैंग्वेज होती है उसमें। इससे क्या होता है कि हमारे यूजर को आसानी हो जाती है ये जानने में कि ये बुक किस चीज़ के बारे में, इसके कंटेंट्स क्या है, ये क्या काम की बुक है, हमारे यूजर के काम की है या नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ट्रांसलेशन सर्विस हेल्प ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, किसी भी मटेरियल जो दूसरी लैंग्वेजेस में पब्लिश हुआ है और लैंग्वेज बैरियर्स है, हमारी लोकल लैंग्वेज नहीं है और हमारा लोकल यूजर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, जब कंटेंट्स ट्रांसलेट हो जाते हैं तो इससे हमारे यूजर को हेल्प मिलती है ये जानने में कि ये जो पर्टिकुलर बुक है क्या ये हमारे काम की है या नहीं है। तो इससे लैंग्वेज बैरियर को जो है उसको ओवरकम करने में हेल्प मिलती है। तो ये भी रेफरेंस सर्विस की ही एक टाइप है। फिर है इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस। Interlibrary loan is a cooperative activity and a narrow form of interloan service. In theory, it is capable of expanding the walls of the library to encompass all the। ठीक है, ये यूनेस्को की तरफ से एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इंटर लाइब्रेरी लोन, जिससे मुराद एक कंजोर्टियम साइन होता है बिटवीन द लाइब्रेरीज, जिसके तहत एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी के सोर्सेज तक अपने यूजर को एक्सेस दे सकती है। तो ये भी एक फैसिलिटी रेफरेंस सर्विस में भी इंक्लूड हो जाती है कि एक लाइब्रेरी अगर उनके अपने पास सोर्सेज नहीं है जिनसे यूजर की क्वेरी को आंसर किए जाते हैं, तो विदन साइन कंसोर्टियम जो दूसरी लाइब्रेरीज हैं वहां तक उनको एक्सेस प्रोवाइड की जाती है और इस तरह से यूजर को सेटिस्फाई किया जा सकता है किसी हद तक। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है रेफरेंस सर्विस में, फिर इसके बाद रेफरेंस सर्विस में हमारे पास आ जाते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोकर सर्विस। ठीक है, जब इंफॉर्मेशन ब्रोकर सर्विस की तरफ आ जाते हैं इसको हम आईपी बोलते हैं। इसमें एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु ऑन डिमांड सीक्स टू आंसर क्वेश्चंस यूजिंग ऑल सोर्सेज एंड हु इज इन बिजनेस फॉर अ प्रॉफिट। इंफॉर्मेशन जो ब्रोकर होते हैं वो बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, और वो फॉर प्रॉफिट बिजनेस करते हैं। फिर जब इंफॉर्मेशन को आंसर नहीं कर सकती एक लाइब्रेरी, देन लाइब्रेरी रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन ब्रोकर टू प्रोवाइड द सर्विस, एंड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस इंफॉर्मेशन ब्रोकर जो होता है वो चार्ज करता है कुछ ना कुछ, और फिर वो तमाम पॉसिबल जितने भी सोर्सेज होते हैं उनको कंसल्ट करता है और क्यूरी को
आंसर करता है, ये भी एक्सपर्ट्स होते हैं और सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर है जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।